ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવે સરશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવે સરશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, અસહ્ય વેઠી વેદના ત્યારે દીઠું તમ મુખડું, એ પુનિત જનના કાળજા પથ્થર બની છુંદશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, કાઢી મુખેથી કોળિયા, મોંમાં દહીં મોટા કર્યા, અમૃત તણા દેનાર સામે ઝેર ઉગળશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવે સરશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ખૂબ જ લડાવ્યા લાડ તમને, કોડસો પૂરા કર્યા, એ કોડના પૂરનારના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જેથી ના ઠર્યા, એ લાખ નહીં પણ રાખ છે એ માનવું ભૂલશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવે સરશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, સંતાનથી સેવા ચહો, સંતાન છો સેવા કરો, જેવું કરો તેવું ભરો એ ભાવના ભૂલશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ભીને સુઈ પોતે અને સુકે સુવાડ્યા આપને, એ અમીમય આંખને ભૂલીને ભીંજવશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવે સરશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી જેણે તમારી રાહ પર, એ રાહબરની રાહ પર કંટક કદી બનશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ધન ખર્ચતા મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહીં, એના પુનીત ચરણો તણી ચાહના ભૂલશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવે સરશો નહીં। મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં।
त्वमेव बन्धुश्च सखायमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। लेवा पाटीदार युवा मित्र मंडळ नवा छाड़वाड़ा ग्रामजनों द्वारा आयोजित भागवत सप्ताह अंतर्गत एक योग वेदांत समिति द्वारा अपनी आदि परंपरा अपनी ऋषि परंपराओं हजारों वर्ष पहला आ परंपरा है ज्યાં શંકરાચાર્ય ભગવાને માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ આચાર્ય દેવો ભવ અને અતિથિ દેવો ભવ આ ચારને નિત્ય ઘરના સૂત્ર આપેલા શંકરાચાર્ય ભગવાને જન્મ માતા પિતા આપે ત્યારથી એ આપણા સદગુરુની રૂપમાં એની વ્યાખ્યા આવે છે એ દેવતાઓની વ્યાખ્યામાં આવે છે પછી આપણને જન્મ મળ્યા પછી જે કંઈ જ્ઞાન મળે એ આચાર્ય હોય અને આપણે ત્યાં કોઈ નિત્ય અતિથિ આવે એ અતિથિ દેવો ભવ ભાગશાળીની ત્યાં મહેમાન આવે ભાગશાળીની ત્યાં અતિથિ આવે એટલે કથાઓ દ્વારા આપણે ઘણું સમજતા હોઈએ એટલે વિશેષ ચર્ચા નહીં કરું કારણ કે આખી પૂજા પરંપરા ચાલુ થવાની બાકી છે પણ જ્યારે ગણેશભાઈ અને યુવાન મિત્રો દ્વારા છાડવાડ ગામમાં આજે ઐતિહાસિક પૂજન થઈ રહ્યું છે ઐતિહાસિક ભાગવત સપ્તાહ થઈ રહી છે ત્યારે ભાગવતજીના 10મા સ્કંદમાં લખ્યું છે સર્વાર્થ સંભવો દેહો જાનિતા પોષિતા યતાઃ નતયોર યાદિ નિર્વેશમ પિતૃર મૃત્યુ શતાયુષહિ 100 જન્મની સેવા કરવામાં આવે તો પણ માતા પિતાના એક જન્મના ઋણમાંથી આપણે મુક્ત થતા નથી। તો તમે ભાગ્યશાળી છો કે આવી સુંદર મજાની વ્યવસ્થા હોય તો ભગવાન ગણેશજીએ પણ માતા પિતાને પરિક્રમા કરી અને સકલ તીર્થ માતા પિતાના ચરણોમાં માની અને એમની ગણના સર્વ દેવોમાં થવા લાગી। પુંડરીકે પણ ભગવાનને બારે પ્રતીક્ષા કરવી પડી માતા પિતાની સેવામાં। એવા અનેક આપણે ત્યાં ભક્તમાલ ચરિત્રમાં ઉદાહરણો। તો આપ જ્યારે અમારે આઈ દેવલ ગૌશાળાથી જીવરાજ ભગત પણ પધાર્યા છે સવારથી કાલથી મને એમનો ફોન હતો તો આ બધા યુવાનો દ્વારા જે આયોજન થયું છે એમાં માતા પિતાની વંદના આમ તો ખરેખર નિત્ય આપણા ઋષિઓ કહી ગયા છે નિત્ય કરવી જોઈએ પણ આપણે વાર તહેવાર કરીએ દિવાળી બાળવે કરીએ ઘરમાં માતા પિતાને પ્રણામ કરી બાળકો નિત્ય કામે જાય તો અહીંયા જ્યારે યોગ વેદાંત સમિતિ દ્વારા માતૃપિતૃ વંદના કાર્યક્રમ ભોજન રાખ્યું છે એ ભગવાન મંદિરમાં છે પણ અહીંયા આપણા પ્રત્યક્ષ ભગવાન આપણા માતા પિતા રૂપમાં બિરાજેલા છે એને ભગવાન તુલ્ય સમજી દેવ તુલ્ય સમજી અને માતા પિતાની આજે તમે જ્યારે પૂજા કરશો ત્યારે આવતીકાલથી તમને એક માતૃપિતા પ્રત્યેનો એક ઋણ અદા કરવાનો કંઈક નવો સંકલ્પ થશે એવા ભાવ સાથે ભાઈ શ્રી ગણેશભાઈ અને ગામના યુવાન કાર્યકર્તાઓ કથા સમિતિના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ્યારે આ સેવાનો અલભ્ય લાભ પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે યોગ વેદાંત સમિતિના માધ્યમથી જે કાંઈ અહીંથી સૂચના આપવામાં આવે એ પ્રમાણે ભગવાન તુલ્ય સમજી માતા પિતાને દેવ સમજી અને આપ પૂજન કરજો। ગમે તેટલા જન્મ લઈએ તો પણ માતા પિતાનો ઋણ ચૂકવાતો નથી તો આપણે તો આ પૂજન કરીએ અને એક આપણી ઋષિ મુનિઓની જે જૂની પરંપરા છે આપણે તમે કરશો ભવિષ્યમાં જો યુવાનો બધા કાલે ગણેશભાઈ કહેતા હતા કે બહુ ઓછી સંખ્યામાં પણ મા મંડપમાં જઈ ગયા નથી બોલો આ ગામનો ભાવ તો સમજો નાના નાના ભૂલકાઓ આવી ગયા છે આ ભૂલકાઓ જ્યારે 5, 20, 25 વર્ષના થશે ત્યારે એમને ઐતિહાસિક આ કથા યાદ આવશે તો અહીંયા માતા પિતાનું જે પૂજન કરવા ગયા એવા ભાવ સાથે દેવ તત્વ સમજી દેવ તુલ્ય સમજી આપની જે અહીંથી જે પરંપરા સૂચના આપવામાં આવે એનો ખૂબ લાભ લેજો અને આવીને આવી પરંપરા આપણા ઋષિ મુનિઓની પરંપરા ભગવાન શંકરાચાર્યની પરંપરા એ જળવાઈ રહે એવી મંગલ કામના સાથે હરિઓમ જય હિન્દ જય ભારત જય ગિરનારી જય ગૌ માતા। गणपतये नमः। ॐ श्री
सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हम उन देव की उपासना करेंगे जो सर्व देवों में प्रथम पूजनीय हैं, विघ्नहर्ता हैं और सभी शुभ कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। इन्होंने ही इन दिनों में अपने माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन कर विश्व मानव को मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पावन संदेश दिया। जी हां, वो हैं भगवान श्री गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वे स्वयं ही ईश्वर हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो बताए। आइए हम सब मिलकर उनकी वंदना करके इस पावन कार्य का शुभारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूज्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। हार पहनाऊं, तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी
चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनी। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता।
कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय मात पिता। लफंगे लफंगियों की नकल छोड़, गुरु सा संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें।
और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम 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 हरि ओम। पूज्य बापूजी ने हम सभी भारतवासियों को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की
एक नई पहल की है, एक नया इतिहास रचा है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी विश्ववंदन्य संत श्री आशाराम जी बापू को बार बार वंदन करते हुए आओ हम सब उनकी ज्ञान युक्त अमृतवाणी का रसपान करें। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहें, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है, सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। यही है असली प्रेम दिवस। पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हरिओम माँ, 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 हरिओम माँ। अब माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए इस प्रकार शुभ संकल्प करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और सभी माता पिता हमारे पीछे बोलेंगे। तुम्हारे जीवन में उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो। तुम्हारी बाहर की आंख के साथ भीतरी विवेक की कल्याणकारी आंख जागृत हो। तुम पुरुषार्थी बनो और हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारे चरण चूमे। आयुष्मान भव। तुम दीर्घायु बनो। श्रद्धावान भव। तुम श्रद्धावान बनो। विद्यावान भव। तुम विद्यावान बनो। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान।
लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। अब कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में श्री राम अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अब कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अरे जय बोलो, मैं से न करो। बोलो गजानन गणपति महाराज की महाकाली माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान भोलानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, माँ पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। हम आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस कार्तिक मास के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ। आप सभी ने हमने श्रवण किया, श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान की अनेक लीलाओं का गुणगान श्रवण किया और भगवान के स्वरूपों का दर्शन भी किया। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम आप सभी। भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमेशा ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहें, आप सब ऐसे ही कराते रहें और हम ब्रजवासियों को भी बुलाते रहें। ये कार्यक्रम आपका हमारे पास 2019 में बुक हो गया था। कब हुआ था? 2019 में बुक कर दिया था बाबू भाई ने। हम वृंदावन से आए हैं, पूरा झांकी का सामान लेकर के, जो पात्रों को बनाते हैं, पूरा श्रृंगार, मेकअप, मुकुट, पोशाक भगवान का सभी वृंदावन का ही है। 2019 में बाबू भाई ने हमें फोन किया था कि आपको आना है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આ પ્રોગ્રામ એવી અપેક્ષા ન હતી કે આવો સારો જશે અને ગ્રામજનોનો સૌજનોનો આપણાને સાથ સહકાર મળ્યો અને આપણો પ્રોગ્રામ બહુ સરસ રીતે ગયો. બસ આટલું કહીને આપણે પૂર્ણ વિરામ કરશું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ. પ્રિયો આ પ્રોગ્રામ બહુ સરસ રહ્યો છે. અમને પણ આશા ન હતી કે આટલા બધા માણસો આમાં ભાગ લેશે. આખા ગામે ભાગ લીધો એ બરાબર બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર.